infinite depths. ہم صحت کے جو ہمارے میرٹس ہیں، جو پرنسپلز آف ہیلتھ ہیں، وہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے لیے توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، اور جن کا بیڑا ہمارے محترم جناب رمضان چشتی صاحب اور دوسرے احباب جو ہے انہوں نے اٹھایا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بالخصوص رمضان چشتی صاحب سے میرا کم و بیش کوئی 30 سال سے تعلق ہے. ان کے والد صاحب سے کچھ لوگ اپنے لیے زندہ رہتے ہیں اور ان کا بہت نام ہوتا ہے، دنیا میں کوئی کام کرے تو بہت نام رہتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کا مرنے کے بعد بھی نام رہتا ہے، جن میں سے ہماری شخصیت رمضان چشتی صاحب ہے کہ انہوں نے خدمت خلق کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پتنگ بازی کا جو شعبہ تھا جس میں جانیں ضائع ہو رہی تھی، یہ شخص سپریم کورٹ تک اکیلا ہی گیا اور الحمدللہ اس نے ون کیا. اگر کہیں سے یہ گزر رہے ہیں، کوئی پل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی سڑک خراب ہے، تو ارسپیکٹو اینی فیکٹ کہ یہ ان کا علاقہ ہے یا نہیں ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کوئی درستی کی جائے. ہم ایک دفعہ کٹھے گجرانوالے سے آ رہے تھے تو رستے میں چشتی صاحب کو کال آ گئی کہ جناب میں نے ایک واٹر پلانٹ لگانا ہے، تو تھوڑی سی تو انہوں نے فرمایا جی 50,000 روپے، یہ پرانی بات کر رہا ہوں، میری طرف سے لکھ لیں. اور چشتی صاحب نے 50,000 دے کے یہ شکر کیا کہ یا اللہ شکر ہے تیرا کہ مجھے موقع مل گیا. تو ایسے کام جس میں بندہ فرام دی کور آف دی ہارٹ خدمت خلق کرے وہی عظیم ہوتا ہے. تو میری بھی خواہش ہے کہ ہم تمام دوست ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، اور جس مقصد کے لیے یہ انہوں نے ایونٹس لایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کارآمد عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مینٹل ایکسرسائز بھی ہے اور میڈیٹیشن اور یوگا گو ٹوگیدر. اس میں آپ فزیکل ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک پازیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں اور نگیٹیوٹی کو اپنے باڈی میں سے نکالتے ہیں بیسیکلی. تو اس سے نہ صرف فزیکل ہیلتھ امپروو ہوتی ہے بلکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی امپروو ہوگی. اور یہ ہر ایج کے بچے ہوں بڑے ہوں، ہر ایج کے بچے میں یہ کہوں گی بڑے ہوں جوان ہوں، ہر شخص کر سکتا ہے، مرد اور خواتین دونوں کے لیے برابر مفید ہے. اور یہ میرے خیال میں کرنا چاہیے، پریکٹس سے آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اور بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ فلیکسیبلٹی چاہیے، لیکن باڈی کو آپ اپنے مطابق ڈھال سکتے ہیں. اور یہ سارا کا سارا آپ کی ایکسرسائز اپنے اسکل پریکٹس سے ہی ہوتا ہے، اور بہت لائٹ فیل کرتا ہے انسان یوگا ایکسرسائزز کے بعد. سو آئی تھنک سب کو کرنا چاہیے، اور صحت کے لیے خاص طور پہ جو جن اسٹریسز سے آج کل ہم گزر رہے ہیں اس میں یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، صحت کے لیے. آئی تھنک سب کو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے انیشل. اور یہ آج کا جو کیمپ ہے یہ بہت بالکل بیسک ایکسرسائزز بتا رہے ہیں یوگا کی، جو میرے خیال میں ہر شخص کر سکتا ہے اگر کوشش کرے تو. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. جی سر کیسے مزاج ہیں، طبیعت آپ کی؟ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بڑا. اچھا ماشاءاللہ، یہاں پہ اس ہال کے اندر اپنا پلاگ کے ہال میں، یہ چھوٹے ہال میں ایک پروگرام ہے یوگا کلاسک بیسک کورس، یعنی کہ ان کا جو ایک مشن ہے. تو آپ کے نزدیک یوگا کیا ہے؟ تھوڑا سا یوگا کے بارے میں بتائیں گے؟ یوگا ایک صحت مند بنانے کی چیز ہے. جتنا آپ یوگا کریں گے اتنا آپ صحت مند رہیں گے. آپ کی صحت ہے تو سب چیزیں ہیں، اگر صحت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. یعنی کہ
योगा सेहत के लिए ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, थोड़े के लिए नहीं, बहुत ज़रूरी है। जैसे इंसान के जीने के लिए रोटी ज़रूरी है, इसके लिए योगा के लिए सैर बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। यानी कि सैर करनी चाहिए, और सुबह सुबह यानी कि योगा जो है ना वो सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे आजकल टेंशन हैं, प्रॉब्लम्स हैं, खुराकें ठीक नहीं हैं, इसके लिए योगा चाहिए। सुबह आपको एक्सरसाइज योगा करें, और कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ करनी चाहिए एक्टिविटी, नहीं तो आप सेहत के लिए आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि आपकी जो खुराक है वो ठीक नहीं है, इसलिए कि खुराक हज़म ही नहीं हो रही आपको। अगर हज़म होगी तो आप करेंगे, तो हज़म होगी तो आपकी सेहत सही रहेगी, जब सेहत सही रहेगी तो सारी ज़िंदगी आपकी इंसान लगे गुजरेगी। इसलिए हमें तो ये कहना चाहिए कि सेहत बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप योगा करें और कोई एक्सरसाइज करें, लेकिन योगा आपके फ़ायदेमंद के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब मुझे यहाँ पे बुलाया गया, इनवाइट किया, तो मैं स्पेशली इसीलिए यहाँ पे आई हूँ कि जो मदर्स घर पे होती हैं तो वो मेंटली तौर पे बहुत थक जाती हैं, फिज़िकली तौर पे बहुत थक जाती हैं, तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से ज़्यादा बेस्ट और बेहतर ऑप्शन है कि हम इस साइड को मूव करें, मेंटली तौर पे भी रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है, टफ़ होगी, मुश्किल होगी, ऐसा लग रहा है देखने में मुझे भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ आएंगे तो दुनिया के बाकी कामों से, घर के कामों से थोड़ा सा हम हट जाएंगे और अपनी हेल्थ की तरफ अपने ऊपर कोई 5-10 मिनट लगाएंगे तो बेटर और बेहतर फील करेंगे। क्योंकि अगर एक मदर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो मेरा ख्याल में वो अपने घर को और अपने बच्चों को बेहतर लेके चल सकती है, और ये मोटिवेशन अगर हमारे अंदर होगी तो यकीनली हमारे बच्चों में भी होगी। आई थिंक कि जो योगा है ये फ़िज़िकली और मेंटली वाकई इंसान को काफ़ी रिलैक्स कर देता है और अपने अंदर एक यंग फील आता है कि मैं वाकई थोड़ा सा अपनी एज से कम हूँ, और ये सारी फीलिंग्स मेरा ख्याल है योगा के ज़रिए ज़रूर आएंगी। आई होप सो कि अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, इन्होंने बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किया है। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशें इनके साथ हैं। थैंक यू सो मच। बेसिकली योगा एक एक्सरसाइज है और हर एज और हर उम्र के लोगों को इसमें करनी चाहिए। आप 70 के लोगों को देखें तो वो एक्सरसाइज के भी आप पे बहुत फिट थी, हमारी माएँ और जो इससे पहले नानियाँ दादियाँ थी, और इतनी ज़्यादा एज के बावजूद भी वो फिट थी और उन्हें कोई बड़ी बीमारियाँ भी नहीं थी। हम लोग जितनी रेस्ट पे और जितना अपनी मूवमेंट्स को हम लोगों ने कम कर दिया, उसी वजह से हम लोग ज़्यादा बीमारियों में और इस तरह की चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि योगा एक आसान एक्सरसाइज है, बजाय इसके कि आप पुशअप और हैवी किस्म के वो एक्सरसाइज करें। तो योगा एक रिलैक्स एक्सरसाइज है और घर में भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वुमेंस को इसमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, और जो पास आपके योगा जिम या एक्सरसाइज के जो सेंटर्स हैं उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, यहाँ पे आप बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है हमारे पिलाक में, तो ये है योगा प्रोग्राम। जी तो जी। क्या समझते हैं आपके, हमें योगा के बारे में आप थोड़ा सा समझाएंगे, बताएंगे कि योगा क्या है और इसकी अहमियत क्या है? जी बिल्कुल जी। मैं बुनियादी तौर पे जी इंटरनेशनल बाइकर हूँ, टूरिस्ट बाइकर हूँ, और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग घूमते हैं। तो जब तक आपकी सेहत नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेहत के लिए मुख्तलिफ जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो कुछ तो बॉडी बनाने के लिए होती हैं, कुछ बॉडी को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने के लिए, जिसको आप वेट लिफ्टिंग कहेंगे या बॉडी बिल्डिंग कहेंगे या कोई ऐसा। योगा इन सबसे मुख्तलिफ है। योगा जो है ये आपकी बॉडी को स्ट्रेच रखने में बड़ी मदद रखता है। आप ज़िंदगी का जो भी काम करते हैं, अगर आप योगी एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप उस काम में कभी भी ना थकावट महसूस करेंगे, ना आपकी बॉडी डी शेप होगी। बड़े सग़ीर में हज़ारों नहीं लाखों साल से ये एक्सरसाइजेज डेवलप होते 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 योगा की शक्ल में आई। आप ये देखें कि हम खुशकिस्मत लोग हैं कि पंजाब में इसका सबसे ज़्यादा एक बेस थी, इसका ओरिजिन था, जिसमें टिल्ला जोगियाँ आप देखें, आप मुख्तलिफ इनके जो हमारे प्री पार्टीशन और सैकड़ों साल पहले जितने भी हमारे यहाँ पे वो इदारे थे, उनमें योगा जो था वो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो थी तस्वर की जाती थी। और अगर आप महात्मा गांधी बुद्ध को देखें, गौतम बुद्ध जिसको कहा जाता है, तो वो ख़ुद एक योगा के एक्सपर्ट थे, और आप उनका मुजस्मा देखें तो उनका पेट जो है वो बिल्कुल अंदर है। वो सिर्फ योगा की बदौलत था, क्योंकि उन्होंने इतने आसन किए थे कि वो रहती दुनिया तक एक नाम दे गए। बिल्कुल जी।
माशाल्लाह जी, बहुत सर बहुत खुश हुई आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ साहब। अच्छा सर, आपने इस फंक्शन में पार्टिसिपेशन की, तो योगा के बारे में ये प्रोग्राम था पिलाक के एक छोटे से हॉल के अंदर, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? सर योगा एक अच्छी गेम है और मेरे सारे दोस्त करते हैं, मुझे भी शौक़ है इस गेम का। मैं कहता हूँ तंदुरुस्त पाकिस्तान हो। यानी सेहत तो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत बिल्कुल, लाइफ जो है ना वो उसको अगर इंसान इसको अपनी सेहत के लिए थोड़ा वक्त टाइम निकाल ले तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी लाइफ है वो खूबसूरत गुजर सकती है। सेहतमंद पाकिस्तान, तंदुरुस्त पाकिस्तान इसी तरह बनता है ना कि आप योगा को प्रॉपर तरीके से देखें ये क्या चीज़ है, करने का फ़ायदा भी है इसका, आपको पता चल जाएगा। एक महीने में 15 दिन में पता चल जाएगा आपको। तो एवरीवन शुड बी रिलैक्स्ड। तो अगर हम जब तक रिलैक्स फील नहीं करेंगे, हम अपनी एनर्जी, अपनी इनपुट अपने कंट्री के अंदर एज अ नेशन, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग हम उस तरह से नहीं दे सकेंगे। तो उसके लिए ना एक्सरसाइज जो है वो बॉडी की एक नीड है। जिस तरह से आपकी हेल्थ के लिए फूड एक नीड है, एयर एक नीड है, जितनी भी नेचुरल चीज़ें एक नीड है, इसी तरह से एक्सरसाइज भी बॉडी के लिए एक बहुत बड़ी नीड है। और ये बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड एरिया है इस टाइम के ऊपर हमारे यहाँ। तो मेरा ख्याल है कि हम एज अ जनरेशन, अभी हम लोग यंग हैं, आने वाली जनरेशन के लिए हमें अगर रोल मॉडल बनना है तो हमें देर तक अपनी फ़िटनेस को भी बरकरार रखना है, तभी हम अपना अच्छा इनपुट दे पाएंगे अपनी जॉब्स के अंदर भी, अपने घरों के अंदर भी, अपने मुल्क के अंदर भी। अगर हमने अपने मुल्क कंट्री को बहुत अच्छा सर्व करना है तो हमें अपनी एनर्जीज़ बहाल रखनी बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए जो है ना इस टाइम के ऊपर देखें बहुत सारे जिम्स हैं, लोग ज्वाइन करते हैं, आप फिज़िकल फिटनेस वहाँ पे ले सकते हैं, वॉक करते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लेकिन जो मेंटल रिलैक्सेशन है ना उसके लिए ये एक बहुत बड़ी ओल्ड एक्सरसाइज है, दैट इज़ योगा। तो योगा इज़ वेरी नेसेसरी कि जिससे आपका जो माइंड है ना वो बहुत हद तक रिलैक्स फील करता है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर। मैं ना ओल्ड क्रेसेंट एरियन हूँ और वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करवाई, वहीं पे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने वहाँ से उठा के बच्चों का ना कुरान पाक हिफ्ज़ के लिए लगाया और ये इस वक्त 8वां सपारा इसका कल कंप्लीट हो गया है। तो मैंने ये ना स्किल में भी ना विनर है। ये मेरे तीसरा और चौथा बच्चा है, दो मेरे 4 बेटे हैं। मैं वहाँ का बेस्ट एथलीट था, फिर मैं ना जूडो का प्लेयर हूँ। मैंने ये कोर्सेज किए और मैंने फ्री ऑफ कास्ट ना बच्चों के गवर्नमेंट के स्कूलों में ना फ्री ट्रेनिंग करवाता हूँ और मेरे उस अदारे से ना मेरे बच्चों को बीट किया उन बच्चों ने। तो वो आज भी हैरान है, वो कहते हैं ये आप अपने बच्चों के अगेंस्ट इन बच्चों को खड़ा किया है। मैंने कहा नहीं, स्किल जो है ना, टैलेंट, उसको आगे लाना चाहिए। आज ये ट्रायल हो रहे हैं पंजाब के और एथलेटिक्स के, कोई ट्रायल नहीं हो रहे, बड़े सीनियर जूनियर सब आ रहे हैं और ट्रायल का कोई मेरिट नहीं है। मैं 5 गेम्स का कोऑर्डिनेटर हूँ, जिसमें खुद मैं 5 गेम्स का प्लेयर भी हूँ। जूडो, जिम्नास्टिक, पावर लिफ्टिंग, ये तीनों गेम्स जो हैं मैं खुद करता रहा हूँ। एथलेटिक्स में मेरे 3 इवेंट्स हैं, 100 मीटर, 200 मीटर और शॉर्ट पुट। अब मैं जो सीखा मैंने अपने बच्चों को, लोगों के बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। लोगों के बच्चों को कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। और जिम्नास्टिक जो है ना, जिम्नास्टिक इज़ द मदर ऑफ ऑल गेम्स। हम अपने बच्चों को चाहिए हमें जिम्नास्टिक करवाएं। और ये माँ की गोश्त, जब दुनिया में बच्चा आता है ना वो जिम्नास्टिक रोलिंग की पोजीशन में होता है, आप देख लें। और चाइना जो है ना इस वजह से, जिम्नास्टिक की वजह से उन्होंने ओलंपिक में 54 गोल्ड मेडल लिए हैं और यहाँ पे इन्होंने जिम्नास्टिक को दफना दिया है। उसकी वजह कि अपने पेटों को पूरा, उनके पेट ही नहीं होते। कोई भी गेम्स ले लें, इनका कोई लेवल नहीं है, ग्रास रूट लेवल होता है। बच्चों को ट्रेनिंग करवाएं। अब हम एक छोटे से बच्चे को बॉल पकड़ा देते हैं, क्रिकेट बैट दे देते हैं कि भाई आप ये खेलें, तो वो क्या खेलेगा? उसका कोई स्टेटस, उसका कोई स्टैंडर्ड इस गेम का है ही नहीं। वो बच्चा जब कोई ग्रोथ कर जाए, कोई हाइट निकाले, कोई उसकी बॉडी लैंग्वेज बताए कि मैं कुछ ये खेलना चाह रहा हूँ, तो वो खेले। हमारे फिजिकल एजुकेशन में जिम्नास्टिक का बिजनेस नहीं है। वो इतने स्ट्रेचिंग, अब आके ये बुढ़ापे में सीख रहे हैं कि स्ट्रेचिंग क्या है। मेरा शोल्डर पुल अप हो गया है, मेरी लेग में ये मोच आ गई है पाँव में, तो उसकी स्ट्रेचिंग है। आप अपने पट्टों को स्ट्रेच करते हैं, उसको रिलैक्स देते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, जिसको मालिशिया कहते हैं, तो फिर जाके वो एक प्लेयर तैयार होता है।
मोहम्मद अशरफ सेठी साहब, जी जी मोहम्मद, माशाल्लाह आपने जितना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जितना खूबसूरती से यहाँ पे आपने किया प्रोग्राम, माशाल्लाह आपके प्रोग्राम को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ये आप योगा के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे कि योगा क्या है और किस तरह इसकी अहमियत है, और ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक, बड़ों तक ये करना चाहिए, और इसकी यानी कि कितनी देर तक ये अब इंसान कर सकता है, अगर ना करे तो क्या इसके तासर होते हैं? इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है, अगर उसका साथ छूट जाए तो वो दूसरों पर बोझ बन जाता है। इसलिए इंसान को एक्सरसाइज, जैसे खाना ज़रूरी है इसी तरह एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। अगर आदमी 3 टाइम खाता और 1 टाइम भी वर्जिश नहीं करता तो उसका आदमी का पेट जो है बढ़ जाता है, फैट आदमी की बढ़ जाती है। अगर इंसान सिर्फ अपनी सेहत के लिए अपनी ब्रीथिंग इनहेल एक्सेल दुरुस्त तरीके से कर ले तो उसका वेट नहीं बढ़ता। इसलिए इनहेल एक्सेल ज़रूर करना चाहिए। अगर आदमी उठकर बैठ भी नहीं सकता तो इनहेल एक्सेल के स्टेप 2-3 कर ले, उसके लिए बहुत आसानी होती है सेहत के लिए। और हम चाहते हैं कि सेहतमंद पाकिस्तान बने और दूसरों को बीमारियों से बचाने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और दूसरों को भी तंदुरुस्त रहने की तौफीक दे, और वर्जिश ज़रूरी करनी चाहिए, जितनी ज़रूरी खुराक है उतनी ज़रूरी वर्जिश है। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ओके। लाइफ इज वंडरलैंड।